so very much that you're here, and we are very, very glad to have the entire team to see that this launch is made it little special. Not just because it's our own content तो हम दिल से बनाते ही हैं, but the special cause that our team has added with NAB. I'm thankful to the team of NAB to participate and to come here and to do this gesture for us. Thank you so very much, and we are very, very sure that you all will see how different or what difference their presence will make in this event. Thank you, Raghuveer ji, for putting up this excellent new launch for us, which is named Shravani. And I would want rather if you all can help, because the media has power and the media can help. Me and Subhash, my colleague, who is the business head of the channel, while we were entering, हम ये सोच रहे थे कि हमारे आने से पहले एक अच्छी खासी भीड़ जमा है. तो मेरी इल्तिजा यही है that help us in making everybody aware that there is something that you can see on the 24th at 8:30 in the channel named Shemaru Umang, and we promise to fill their heart with a lot of happiness and satisfaction. The show has come out very, very well. You'll see a glimpse of it here, and I don't want to take anything away. The request that I've come up here is, please see what we can do with this difference. Otherwise than this, are just few more words about Shemaru, because at Shemaru we are trying to create new things every week, every day. Time also, we'll have one more launch in a couple of months, Subhash, right? In couple of months, we'll have continuous launches. We also would come up with some new promises of channels in new language or channels with something else. Can't divulge more, but just want to keep the excitement of everybody to be associated with Shemaru and look up to Shemaru with a different lens now. At Shemaru, we are changing. We are growing fast. Some time back, we had said that we are 60 years young. We are growing to be much, much faster and younger. So need everybody's help. As I just said, please do something different. ये 24 तारीख शाम को 8:30 बजे लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन पे शेमारू उमंग देखें और इस शो को देखें. And that is what I'm sure you all can do it. Please do that for us. And अभी आप ग्लिम्स देखिए आगे. Right? Thank you so much. और आज मैं बताना चाहती हूँ श्रवणी की कहानी कि श्रवणी कैसे अपने माँ बाबा की आंखें बंद कर रहती है. इसमें जो मेरे माँ बाबा होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो बचपन से ही नहीं देख पाती है, बट जो मेरे बाबा होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो जो फोड़ी जाती है, बट मेरे को वो पता नहीं होता है. बाद में मेरे को पता, जिनसे ये चंद्रा है जो हमारी यहाँ की विलन बनती है, और मुझे पता नहीं होता कि ये मेरी ताई जी है. और कितनी बार मैं इनसे मिलती हूँ, बट मुझे पता नहीं होता ये मेरी ताई जी और ये मेरी फैमिली से है. और बट ये जो मेरे बाबा बनते हैं, पहले इनका नाम केशव होता है, बट ये बाद में अपना नाम चेंज कर देते हैं, अपना नाम मोहन रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले. और अगर किसी को भी, जैसे मैं इनके घर जाती हूँ बाद में हवेली में, अगर ये पूछते हैं आपके माँ बाबा का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ मोहन और नीति. तो पहले इनका नाम था नेत्रा और केशव. तो इन्होंने नाम चेंज किया और मेरे को खुद को नहीं पता था कि इन्होंने नाम चेंज किया है. सो ये सब जो है, ये पूरा ये हमारे रघुवीर सर ने लिखा है. रघुवीर सर आ जाओ. ओके, श्रवणी की शुरुआत कैसे हुई थी? अपने आसपास में, अपने घरों में जब हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है वो हमारी पुरानी कहानियाँ भूल चुकी है, हमारे संस्कार भूलते जा रही है, तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी. और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है. तो आज के दौर में, आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है. श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं.
हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं जो उन्हें श्रवणी बनाए। सो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए नहीं ज़रूरी है, ये उस समाज को, उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं। उनकी मुश्किलें, उनका संघर्ष, उसको देखने के लिए भी ज़रूरी है, उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत एज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडिया जी, हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और अब आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, और ये शो बहुत प्यारा है, उतनी ही प्यारी ये बच्ची है, एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे। श्रवणी की माँ नीति जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब प्ले कर सकते हैं, बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ। इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जिनको ऐसा मौका मिलेगा, जिन्हें दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविज़न पे आई हूँ, एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपने ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या। एंड इफ़ सम अप करूँ तो बोलूँ तो शी इज़ लेडी चाणक्य, जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ता है। एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है, और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता तो मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे आता है मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी। बट टचवुड, आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं राजी सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे ही देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है। सो आई फील blessed, and that's it. Thank you so much. बहुत मज़ा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची। मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा, और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है, और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है। हमारे जो मेकर्स हैं, जिनकी छाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शेमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तो मैं बस यही कहूँगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए। हर हर महादेव।
मेरे फेवरेट रघुवीर सर, जो कि मतलब मेरे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। उनको मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो देते हैं। मेरे फेवरेट गोलगप्पे। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा जब इनके ऑफिस में जाती थी तो मैं कहती थी इन्हें कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ, तो सर मंगवाते थे। और तीखी वाली ब्राइब करते थे। That is so और सर कहते थे मैं हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। ऑफ कोर्स ये माइथों से तो बहुत अलग है, वो तो सरस्वती माता सिर्फ आशीर्वाद देती थी। सो यहाँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ। एक बेटी है, मेरी हस्बैंड है जो नहीं देख सकते, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नॉर्मल शो से बहुत अलग स्टोरी है इस शो की, और जो कैरेक्टर है मेरा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस शो में काफ़ी अलग है, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। जाके पूछ लेता हूँ कि सर कैसा लग रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है या कुछ बेटर हो सकता है तो आप थोड़ा मुझे बताएं। बाकी जर्नी तो चाहे अगर बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन जर्नी होती है तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि अगर बुरी जर्नी भी है तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी अच्छी जर्नी में काम आएगा। सो मेरे लिए वो सारी जर्नी अभी अच्छी होती दिख रही है। आई स्वेयर, कभी कभी अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा OS चल रहा था, और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहाँ से मनमोहन बोलते हैं प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफ़र किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और ये वर सो हैप्पी टू वेलकम मी कि मैंने बोला चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, अब तो कर लेंगे जैसे भी। बहुत मज़ा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। मैं मनमोहन हूँ, वीरेंद्र जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मतलब इतना इन कैरेक्टर घुस चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा एकदम, मतलब ये भी मेथड एक्टर है, वो भी मेथड एक्टर है। पता नहीं मैं कौन सा वाला एक्टर हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ मैं एक्टर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। और इस किरदार के थ्रू मैं आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ, और डराने की भी कोशिश करूँगा, चालाकियाँ भी करूँगा, बदमाशियाँ भी करूँगा, और शुद्ध भाषा में मनोरंजन इस सब का जो ठीकरा है हम सब लोगों ने उठा रखा है, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ी वाली है। बहुत मज़ा आएगा, बस एक लाइन आप समझ लीजिए। जब आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नामी लोग होते हैं और आप उतना नहीं पहुंच पाते हो, तो मुश्किल होती है उनके बराबरी की नहीं। बट अभी भी मुझे याद है जब हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो मुझे साइड में हटा दिया जाता था, और जो स्टार्स होते थे बोलते थे आप आइए। तो कहीं ना कहीं दुख होता है जब मुझे बहुत बार हटा दिया गया है कि अगर बिकॉज रागिनी और कृष्णा झलक कर रहे थे तो बोलते आप हट जाइए। तो मेरे को ऐसा कि कितना टाइम हो गया, मैं सोचती थी यार मैं बहन हूँ उसकी, ऐसा वो मेंटल लेवल पे धीरे धीरे करके होता है, तो वो मेंटली स्ट्रगल होता है। बट अदरवाइज हिम्मत बहुत देता है और आपको आगे बढ़ने की देता है कि मुझे भी करना है। एंड टच वुड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। तो या जनता को, ऑडियंस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही सुख का आदान प्रदान जीवन में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं किया है, पॉजिटिव बहुत सारा काम किया है हमने, पर जो चर्चा होती है ना और जो जन जन तक पहुंचती है वो रावण वाले किरदार की होती है, विलन वाले किरदार की होती है, नेगेटिव किरदार की होती है। वो एकदम से लोगों को टच करता है, तो और मुझे लगता है वो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, इस वजह से शायद ये मिलता होगा। एक्चुअली मैं ये 5 ईयर्स से कर रही हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 5 ईयर्स से हूँ। सो मतलब फर्स्ट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मेरे को पता था ये कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से। शी इज़ ब्रिलियंट। अभी भी छोटी हूँ, मतलब उससे भी जब 3 या 2 ईयर्स की थी मैं, तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, एक्टिंग करना।
तो एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ। तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा, तो फर्स्ट शो मैंने गुड डन किया था। और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी, जब मेरी मम्मा बिज़नेस करती है उदयपुर में, तो मैं उधर चली गई थी। एंड लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी, तो मेरे को उसके लिए बुलाया था उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए, तो मैं गई थी। बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम 5 इयर्स या 4 की थी। तब एक ऑडिशन माइथो में भेजा था, जैसे इनके साथ और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था। वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम, बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था, भंडासुर की बेटी। और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो किया था मैंने, वो एक्चुअली लॉकडाउन था तो वो बंद हो गया था, 2 महीने चला था। और छोटी सरदारनी जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था, मैं उसमें बॉय बनी थी, करण। और भी ऐसे शोज़ किया, और ये श्रावणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में। और ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव रोल करे तो ये रियल में ऐसी है। ये बहुत प्यारी दीदी है, ये बहुत प्यारी दीदी है। यूपी में पली बढ़ी हूँ, तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत, और जैसे बकर बकर मत करो, बहुत बतिया रहे हो, ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ, तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म, और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म। मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है। एंड टचवुड हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है हमें।